નમસ્કાર મિત્રો, અમે પહોંચી ચૂક્યા છીએ હલ્દી ઘાટી. હલ્દી ઘાટીનો સુપર સાઇટ સીન, મહારાણા પ્રતાપનો જે ઇતિહાસ કહેવાય, જોરદાર ઇતિહાસ, સમજવા લાયક ઇતિહાસ. હું એમ કહું કે આપણે પિક્ચરમાં અથવા તો આપણે બુકમાં ઘણું વાંચતા હોય, પણ જે હલ્દી ઘાટીની અંદર જે મહારાણા પ્રતાપનો ઇતિહાસ, હકીકતનો જે સાચો ઇતિહાસ મ્યુઝિયમમાં જે દર્શાવવામાં આવ્યો છે, એ જોરદાર ઇતિહાસ દર્શાવવામાં આવ્યો છે. અમે આજે પ્રી હનીમૂન કપલ ટૂર સમૂહ લગ્નની લઈને પહોંચી ચૂક્યા છીએ હલ્દી ઘાટી. અને આપને હું એમ કહું કે યુટ્યુબના તમામ મિત્રોને અને તમામ મારા જ્ઞાતિજનોના ભાઈઓને હું એક જ રિક્વેસ્ટ કરવા માંગુ છું કે ઘરે બેઠા બેઠા અમે આ તમામ દ્રશ્યો બતાવવા માટેનો એક પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ કે તમે પણ, અમે તો હું એમ તો બધા કપલ સાથે એન્જોય કરીએ છીએ અને આનંદ કરાવતા રહીશું અને આનંદ પણ કરીએ છીએ, પણ બધા કપલ સાથે જે આનંદ અમને અદ્ભુત આવ્યો છે તેમનો નજારો અને જે હકીકતના જે હું એમ કહું કે જ્યાં જઈ નથી શકતા, ત્યાં સુધી ક્યારેય ગયા નથી, એ ઇતિહાસ હું એમ કહું કે જે જોવાલાયક ઇતિહાસ છે મહારાણા પ્રતાપનો, એ આખો મ્યુઝિયમમાં બતાવવામાં આવ્યો છે. હલ્દી ઘાટી નામ શેમાંથી આપવામાં આવ્યું છે, ઉદયપુરનું નામ શેમાંથી આપવામાં આવ્યું છે, રાજસ્થાનના તમામ જે અલગ અલગ સાઇટ સીનો છે, ફરવા લાયક સ્થળો છે, ફરવા લાયક જે જગ્યાઓ છે, એના તમામ ઇતિહાસો એમ બતાવવામાં આવ્યા છે. અને મહુવા તાલુકાની પણ હું એમ કહું ગુજરાતભરની અંદર આવો સમૂહ લગ્ન કાર્યક્રમ તમને ક્યાંય પણ જોવા નહીં મળે કે 70 જાતની એકથી એક વસ્તુ દીકરીઓ વાપરી શકે એવી વસ્તુ પણ આપવામાં આવે છે. અને પ્રી હનીમૂન કપલ ટૂર પણ જોરદાર આયોજન હોય છે. એ આયોજનનું તમે યુટ્યુબના માધ્યમથી બને ત્યાં સુધી ઘર ઘર સુધી વાત પહોંચાડો કે ભાઈ આપણા સમાજની અંદર પણ આવા સમૂહ લગ્નનો કાર્યક્રમ થાય છે. આપણને ગર્વ થવો જોઈએ કે આપણા સમાજની અંદર આવો કંઈક પ્રસંગ થાય છે. એટલા માટે બધાને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે તમે, એક જ વાત કરું છું કે તમે બને ત્યાં સુધી આ વિડીયોને, બધા વિડીયોને શેર કરો, બીજા લોકો જોઈ શકે, બીજા લોકોને આપણે ગૌરવવાળી વાત કરી શકીએ કે ભાઈ આપણા સમાજની અંદર આવો કાર્યક્રમ થાય છે, આપણા સમાજના દીકરા દીકરીઓ આવી રીતના હનીમૂન ટૂરમાં જાય છે. આવો એક સોનેરો મોકો આપણા સમાજના તમામ દીકરા દીકરીઓને અમે આપ્યા છે. પ્રી હનીમૂન કપલ ટૂર, એમાં તમામ જાતનો ખર્ચો, હું એમ કહું કે ત્યાં જમવાનો, રહેવાનો, અહીંથી જવા આવવાનો, બસનો ખર્ચો તમામ અમારો હોય છે. બિલકુલ નિઃશુલ્ક હું એમ કહું કે ટૂરનું આયોજન હોય છે. એને તમામ જાતનો અમે આનંદ કરાવતા હોઈએ, જિંદગીના દરેક સપના સાકાર કરાવતા હોઈએ. એ તમે અગાઉના વિડીયોમાં પણ જોયું હશે કે બધા કપલના રિવ્યૂ અમે લીધા, અને હજી પણ આગળના તમામ સાઇટ સીનના રિવ્યૂ તમને અમે બતાવશું કે કેટલી કપલને આનંદ આવે છે, એન્જોય આવે છે, અને કપલ સાથેની જે મોજ છે એ અમને પણ અદ્ભુત આવે છે. એટલે હું કહું છું કે ભાઈ એકવાર વિડીયો શેર કરવામાં આપણો કોઈ ખર્ચો લાગતો નથી. એટલે બને ત્યાં સુધી વિડીયો જોજો, આખો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો. જો મહારાણા પ્રતાપનો ઇતિહાસ સમજવાનું જો આપણને થોડો કંઈ રસ હોય તો મહારાણા પ્રતાપનો આખો ઇતિહાસ, એક એક વસ્તુ તમે આમાં, હું એમ કહું કે અમે જે રેકોર્ડિંગ કર્યું છે મોબાઈલની અંદર, એ રેકોર્ડિંગમાં મ્યુઝિકના માધ્યમથી, અને ત્યાં હું એમ કહું કે જેને સ્ટેચ્યુ બનાવ્યા છે એ તમામ સ્ટેચ્યુ લાઈવ જેવા, ઓરિજિનલ જેવા સ્ટેચ્યુ બનાવ્યા છે. એટલે તમામ આખો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો અને ધ્યાનથી સાંભળજો. વિડીયો અંત સુધી જોજો, વિડીયોને શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો ન કરેલું હોય તો, અને લાઈક કરજો. અને બને ત્યાં સુધી વિડીયોને આખો પૂરેપૂરો જોવા વિનંતી. અસ્તુ આગળ જો વિડીયો આવે છે આપણો, જોરદાર વિડીયોનું આયોજન છે. આગળ વિડીયો આપણો શરૂ થઈ ચૂક્યો છે.
રાજસ્થાન કપલ હનીમૂન ટૂર. બધા કપલ અહીંયા મહારાણા પ્રતાપના સ્ટેચ્યુ સાથે ફોટા પાડી રહ્યા છે. આમ જો ગેટ બંધ થઈ જાવ પેલા હાલો. મારામાં શૂટિંગ ચાલુ છે. મહારાણા પ્રતાપનો આખો ઇતિહાસ તમને બતાવી રહ્યો છું. મહારાણાના પ્રતાપ ના વસ્ત્ર હજી અહીંયા મોજૂદ છે. પરેશભાઈ સહેજ આગળ આખો વ્યૂ બતાવું મહારાણા પ્રતાપનો. આ વસ્ત્ર છે મહારાણા પ્રતાપના. બાલા રજવાડાના બાલા કેવા આને. થોડી વારમાં થોડોક ઇતિહાસ ચાલુમાં भालू અગત્યની વસ્તુ અને મહત્વની વસ્તુ પ્રતાપ મહારાણાને બતાવવા જઈ રહ્યો છું. પાઘડી જે આખો अकबर की सेना के मध्य हुआ था. इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे. उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था. हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ. आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं. संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था. यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है. इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है. इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी. ये सेना तीर भाले पत्थर चलाने में कुशल थी. यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था. मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी. तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया. ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई. महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया. इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ. इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए. जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया. इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया.
इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब ये फिल्म और लाइट व साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आगे में एक मूवी और है, आपको यहाँ पे जो भी લીધો ત્યારબાદ ઇતિહાસના ઘણા બધા અહીંયા કાલ્પનિક ચિત્રો હજી પણ મોજૂદ છે તે આપણે જોઈએ છીએ। रास्ते बता देगा हम वो चीज़ देखी जो भी वो चीज़ देखना હાલો હાલો અંદર હાલો। 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम हासूर कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों के टापों, हाथियों की चिंगारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर इन पर टूट पड़ी और झालामान
शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण यह है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। પિક્ચર જોઈને અમે નીકળ્યા છીએ અને મ્યુઝિયમ બહુ જોરદાર છે, જોવાલાયક એમ. દાદા મજામાં? દાદાની મોજ જીઓ માં પણ હે જો આ જે મ્યુઝિયમ બનાવેલું છે अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे की तरफ देखिए। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते, तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर
1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहां से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। આખા ઇતિહાસનું એવું અહીંયા આખું ચિત્ર બનાવેલું છે। એક એક વસ્તુ બહુ ને ધ્યાને રાખીને બનાવેલી છે કે આખા રાજસ્થાનમાં જે આપણે જગ્યાએ જઈએ છીએ, મહારાણા પ્રતાપ હોય, કુંભલગઢ હોય, હલ્દી ઘાટી હોય, તમામનું રહસ્ય અહીંયા જાણકારી આપવામાં આવે છે। મ્યુઝિયમ દ્વારા બહુ સુંદર આયોજન આ લોકોનું કરવામાં આવ્યું છે। ये शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। આપણે આગળ જવાનું છે હજી ઇતિહાસ જોતા જોતા। પુસ્તકોમાં આપણે ક્યારે વાંચતા નથી ને, એટલે આ ઇતિહાસ આપણે ઘણો બધો નવીન લાગતો હોય। चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा, उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया।
बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। હજી ઘણો બધો ઇતિહાસ આપણે આગળ જોવાનો છે. महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। घोड़ा पड़ी जातो ई से ने ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ધોડે રાખો सैंपल का कोई चार्ज नहीं है, आप लोग देखिए सामने बता रहे हैं। રાણા પ્રતાપ વખતનો આ બળદનો ઇતિહાસ આજે પણ આપણા ખેડૂત અને કિસાન ભાઈઓએ અડગ રાખ્યો છે. એ ભાઈ ગણીને નિલેશભાઈ ટિકિટ લઈ આવો.